Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science from SPCGC Ajmer. This is paper second of BA part first, representative Indian political thinkers, and ancient Indian political thinkers are there, Manu, Kautilya and Shukra according to our syllabus, and we have covered Manu and Shukra's thoughts, political thoughts, and in this video we will discuss about the political ideas of Kautilya, popularly known as Chanakya. So let's start. First, Kautilya talks about the origin of the state, and his ideas about origin of the state are quite similar to the ideas of Manu, that of Manu, and those of Manu, and the basic difference is here that Manu supports the divine theory regarding this, and Kautilya supports the contract theory. So let's start. In the beginning of human civilization, there was Matsya Nyaya. Matsya Nyaya, that's mean bigger fish eats smaller fish, and in the context of society, it's mean powerful and rich people exploit the poor, and therefore anarchy and disorder was there, and the oppressed people went to the Vishwatma Manu and had a contract with him of accepting him as their king, rendering willing obedience, and paid taxes to him. So here contract is here that public we will pay the taxes to the king, and the king will protect the public will pay the taxes to the king, and king will protect the public. This is the contract, and most important thing here is that king is not absolute, or he doesn't work as an absolute, or in an arbitrary manner, or he is not a dictator, and he works for the pleasure and welfare of the people. Next one is Saptang theory, that means 7 organs of the state, and here I have mentioned the sequence, and we have to follow this sequence in examinations. So it is an organic whole having mutually independent 7 organs, and these organs are king or Swami. Second one is Amatya or ministers. Amatya are the ministers and the official class. And next one is Janpad or Rashtra, that includes both territory and population. And Kautilya wants people to be loyal, tax paying, hardworking, and satisfied, and they form the main source of revenue. Only land is not important as the source of food. Others like forests, tanks, animals, birds, soldiers, forts, etc. are included in the Janpad. Next one is Durga or forts, and Kautilya has classified them. There are four types of forts are there. First one is Odak fort. Odak forts are surrounded by water. Parvat forts amidst mountain ranges and big rocks. Dhanvan forts situated in desert and lands. And next one is one fort. So one fort, that's mean jungle or forest. Next constituent element is Kosh. Next one is Danda, that is army or force, and next one is Mitra, that is neighboring allies. And next we will talk about the king, that is and Kautilya has used the word Vijigishu Rajrishi word for the king, and Kautilya's government consists of 3 elements: the king, the officials, and the mechanism of administration. And he virtually creates a moral philosophy of kingship, and in fact his whole plan of realizing the short-term and long-term goals depended on the king, whom he liked to call Vijigishu. Vijigishu, that's mean victory loving. So the king is the most important constituent element of the state, and Kautilya regarded education and training along with the others, and the most important thing for the king, and their minds must be trained, and wills disciplined through education. And education includes learning of writing, arithmetic, the philosophy, economics, and politics, etc. And when the king goes against the dharma, he can be removed. And Kautilya sets a daily routine
or daily timetable for the king, and he divided a day into 16 parts or gharis, the night into 8 and the day into another 8 gharis, and his all actions should be for the welfare of the people and to please them. And Kautilya keeps him so busy that he is almost servant of the people. He has no time for his own entertainment. And here comes the duties and functions of the state or kings. The answer will remain the same if the examiner asks about the duties and functions of the state or duties and functions of the king. So, duties and functions of the king are maintenance of varnashram system in the society, and he will work for the welfare and protection of the public, and protection of his own kingdom. And Kautilya supports here welfare state that is positive state. We have discussed it earlier when we were discussing the political ideas of Manu and Shukra. And the king will maintain law and order situation in the society, and economic activities, so cultural and social activities, and all functions related to justice, and whatever a welfare state contains, the king will perform such duties. Next one, here comes control over king's authority. So many controls and restrictions are control and restrictions are there over king's authority, like contract or oath. And the king and his authority is the outcome of a contract between the people and the king. And the king neither can tax the people in excess or nor oppress them for his personal gains, and he is like a paid soldier. Next one is dharma and morality, and the most powerful I can say weapon to keep king under control and at that time for India. And next one is council of ministers, and there is council of ministers to advise the king, and they will also keep the king on the right path actually, by controlling him. And next one is people and public opinion. Last one is education, training and daily routine. तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य, जिन्हें हम लोग पॉपुलरली चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने उन्होंने विचार दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में। राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य के ऑलमोस्ट सेम विचार हैं कि एक समय सृष्टि के प्रारंभ में ऐसा था जबकि राजा और राज्य दोनों ही अस्तित्व में नहीं था, कोई भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी अस्तित्व में नहीं थी, इसीलिए वहाँ पर मत्स्य न्याय प्रचलित था। मत्स्य न्याय का अर्थ होता है कि बड़ी मछली है छोटी मछली को खा जाती है। समाज के संदर्भ में अगर हम लोग इसे देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि समाज के जो ताकतवर लोग होते हैं समाज के निर्बल वर्गों का शोषण करते हैं, और ऐसी ही स्थिति उस वक्त थी क्योंकि कोई भी कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी उस वक्त नहीं थी। इसीलिए इस वक्त पूरी तरीके से अराजकता, अव्यवस्था की स्थिति थी, किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं था। ऐसे में जो कौटिल्य हैं यहाँ पर समझौता सिद्धांत का समर्थन करते हैं। समझौता हुआ प्रजा और राजा के बीच में। प्रजा ने राजा को वचन दिया कि वो उसे टाइम टू टाइम टैक्स पे कर चुकाएंगी, और राजा ने प्रजा को उसकी सुरक्षा का वचन दिया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि इसके अकॉर्डिंग जो किंग है, राजा हैं, वो निरंकुश नहीं है, वो अनेक प्रकार की उनकी सत्ता के ऊपर नियंत्रण रखे गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी दैट्स मीन सप्त प्लस अंग थ्योरी, मतलब राज्य के 7 अंग जो कि हमारे सभी प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने माने हैं। सबसे पहले आ जाता है किंग या स्वामी, दूसरा आ जाता है अमात्य या मिनिस्टर, थर्ड आ जाता है जनपद या राष्ट्र, फोर्थ आ जाता है दुर्ग या फोर्ट्स, किले या दुर्ग। नेक्स्ट आ जाता है कोष या खजाना। नेक्स्ट आ जाता है दंड दैट्स मीन फोर्स और आर्मी। और नेक्स्ट वन आ जाता है मित्र। यहाँ पर मैंने इसका सीक्वेंस दिया है, एग्जाम्स में हमें इस सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं करना है। सीक्वेंस एक्चुअली में यही रहेगा क्योंकि ये इनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग एक राज्य के लिए इनके महत्वपूर्ण होने के क्रम में इसे अरेंज किया गया है। तो एक राज्य के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है खुद राजा या स्वामी। सेकेंड आ जाता है अमात्य या मिनिस्टर। थर्ड आ जाता है जनपद या राष्ट्र। जनपद या राष्ट्र का मतलब होता है, 2 चीज़ें इसमें इंक्लूड है, एक होती है भूमि और दूसरा होता है उस पर निवास करने वाली जनता।
तो कौटिल्य का ये मानना है कि जो भूमि है वो सभी प्रकार से संपन्न, सभी प्रकार से पूर्ण और सभी प्रकार से सुरक्षित होनी चाहिए, जहाँ पर आपको सभी प्रकार की आवश्यकता की चीज़ें, सुख सुविधा के साधन आपको उपलब्ध रहेंगे। और जनता है वो स्वाभिमानी और राजा के प्रति निष्ठावान और इजीली टैक्स पेइंग और इस तरीके से होनी चाहिए, जो आसानी से अपने खुशी से अपने कर चुकाती हो और राजा की जो आज्ञा का पालन करती हो। दुर्ग या फोर्ट या किले आ जाते हैं, जो कि कौटिल्य ने 4 प्रकार के मानी है। पहला आ जाता है औदक दुर्ग। औदक दुर्ग जो कि हम लोग इसे जल दुर्ग कहते हैं। पार्वत दुर्ग नाम से ही हमें पता है कि जो पर्वतों से घिरा हुआ है। धानवर दुर्ग जो कि मरुस्थल में बना हुआ है। और वन दुर्ग जो कि जंगल या फॉरेस्ट वन दुर्ग आ जाता है। कोश आ जाता है, दंड आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है मित्र आ जाता है। मित्र का अर्थ होता है एक राजा की पड़ोसी राज्यों से मित्रता। नेक्स्ट आ जाता है कौटिल्य के विचार राजा, जिनके लिए उन्होंने कौटिल्य ने विजिगीषु या राजऋषि शब्द का प्रयोग किया है। विजिगीषु का अर्थ होता है एक राजा जो निरंतर विजय प्राप्त करना चाहता है, जो निरंतर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। और राजऋषि, राजा प्लस ऋषि, मतलब राजा होते हुए भी उसमें राजा और ऋषि दोनों के गुण रहेंगे। राजा की तरह वो अपनी प्रजा का पालन करेगा, लेकिन ऋषि की तरह वो बिल्कुल एक निर्लिप्त भाव से अपनी प्रजा की सेवा करेगा। तो राजा जो कि राज्य का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है। और उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग के पर जो कौटिल्य हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि इसी से जो किंग होते हैं उनमें जो किंगली वर्चूज़ होते हैं, एक राजा के जो दैवीय गुण होते हैं वो उनमें आ सकते हैं। और एजुकेशन में जो कौटिल्य का फोकस है वो है कि उन्हें पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिलोसफी है और इसी प्रकार की सभी विषयों की शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। और क्योंकि जो कौटिल्य का राजा है वो एब्सोल्यूट नहीं है, निरंकुश नहीं है, इसीलिए यदि वो धर्म का पालन नहीं करता है तो उसे अपने पद से हटाया जा सकता है और प्रजा दूसरे ऐसे व्यक्ति को राजा बना सकती है जिसमें किंगली वर्च्यूज़ हों। डेली टाइम टेबल ऑफ द किंग, राजा की दिनचर्या कौटिल्य ने डिसाइड की है। उन्होंने दिन के 24 घंटों को 16 पार्ट्स या 16 घड़ियों में विभाजित किया है, जिसमें रात की 8 घड़ियाँ आ जाती हैं और दिन की भी 8 घड़ियाँ आ जाती हैं। तो ये जो टाइम टेबल है कौटिल्य ने इस तरीके से डिसाइड किया है कि राजा का हर क्षण प्रजा के कल्याण में बीते और उसके अलावा उसका जो अन्य कोई उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी दुर्गुण ना आने पाए। ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट या किंग आ जाता है। तो यदि एग्जाम से पूछा जाता है ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ द किंग या स्टेट, आंसर सेम रहेगा। तो ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट या किंग में जो कौटिल्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य या सकारात्मक राज्य का समर्थन करते हैं। और एक सकारात्मक राज्य वह होता है जो कि अपने नागरिकों को सभी प्रकार की सुविधाएं और प्रदान करता है। तो जैसे ही हम लोग वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, हमारे पास में जो ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस हैं उनकी एक काफ़ी लंबी लिस्ट हमारे सामने आ जाती है, जिसके अंतर्गत प्रजा का कल्याण करना, प्रजा की सुरक्षा करना, राज्य की सुरक्षा करना, जनता को न्याय प्रदान करना और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, आर्थिक गतिविधियाँ आ जाती हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ आ जाती हैं, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना जिसके अंतर्गत वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना, और ये सभी इनके कार्य आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल ओवर किंग्स अथॉरिटी, राजा की सत्ता पर नियंत्रण, जो कि कौटिल्य ने काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से इसे बताया है ताकि राजा किसी भी प्रकार से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर पाए। तो सबसे पहला तो आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट और ओथ, जो समझौता राजा ने प्रजा से किया है कि वो प्रजा की निरंतर सुरक्षा करेगा। और इसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत यदि राजा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो पब्लिक है उन्हें वैसे भी राइट है कि वो उस राजा को अपने पद से हटा दे। धर्म का नियंत्रण, जो कि हमारे प्राचीन भारत में काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से राजा पर नियंत्रण रखता है। धर्म नैतिकता के सिद्धांत है जो कि राजा के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, जिनका कार्य राजा को मंत्रणा देना होता है, सलाह या परामर्श देना होता है, वो भी राजा के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। इसीलिए उनका कार्य होता है कि राजा को बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के अपना परामर्श देना। और नेक्स्ट आ जाता है पीपल एंड पब्लिक ओपिनियन, जनता का नियंत्रण आ जाता है। और नेक्स्ट आ जाता है राजा की खुद स्वयं की शिक्षा है, उसकी जो ट्रेनिंग उसकी की जा रही है, डेली रूटीन जो कौटिल्य ने उनके लिए सेट किया है, तो वो भी राजा में दैवीय गुणों को बढ़ाते हैं और राजा की सत्ता पर कहीं ना कहीं नियंत्रण रखते हैं। That's all for today from my side. Thank you very much.